Once again I am here with new topic for class 9th. Myself Shipra. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the equations for motion with uniform acceleration. Dear students, you know that the displacement, velocity and acceleration. Now these three are the vector terms: displacement, velocity and acceleration. Now what is displacement, what is velocity and what is acceleration, that is already clear to you. Now I am going to discuss the relationship between the displacement and velocity, displacement and time, the velocity and acceleration. What will be the equations for motion of any object when it is moving with uniform acceleration. That is my topic for today. So equations for motion, equations for motion with uniform acceleration. Okay, so before discussing this topic, let us revise the terms. That displacement. Now what is displacement? Displacement is a vector quantity. You all know that displacement is the shortest distance between any 2 points. Means that if any 2 points are there, A and B, we can approach from A to B in a number of ways. Let us suppose there are 2 points A and B. So from A to B we can go by this way also, and by this way also. So you can see that I have drawn the three different paths. It is one second path, this is the third path. So we can approach it in various ways, but the shortest way is the path number 2. So AB is the displacement, because in this direction it will be the shortest length of the path. What is displacement? The shortest length of the path between any 2 points. Displacement क्या होता है? It is the shortest distance. Displacement. What is it? It is the shortest distance that you already know. Shortest distance between any 2 points. That is known as displacement. Of course it is a vector quantity and unit is meter. Already you know this thing. Now let us revise just a minute. So now second point is velocity. Now what is velocity? Velocity is the vector term. Again, it will have obviously the direction as well as magnitude. It means that the speed comes along with the magnitude. When the speed comes along with the direction, it gives us the speed. Now speed is what? How fast any object is moving. कोई भी object कितनी तेजी से चल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग speed कहते हैं. लेकिन velocity क्या है? कि कोई object कितनी तेजी से किस direction में चल रहा है, इसका जो description है, that is called as velocity. So how can we define velocity? Velocity is defined as the direction, how fast any object is moving in a particular direction, that is given by velocity. Now what is velocity? Velocity is the displacement upon time. Velocity क्या होता है? It is displacement upon time. Now displacement upon time is what? Displacement is a vector quantity. Again velocity is a vector quantity. Displacement, velocity. क्या लिख सकते हैं velocity को? How fast any object is moving in a particular direction is called its velocity. Done? Next term is your acceleration. I think all of you are knowing this thing. Now what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. Acceleration क्या होता है? तो rate of change of velocity होता है. Velocity क्या भाई? तो velocity हमारी हो जाती है displacement upon time. ये आपको पता होगा. बस एक सेकंड में हम लोग रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे. ये displacement upon time हो गया. अब आ जाता है आपका acceleration. देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब कि अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, तो उस चेंज में पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चेंज है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. कहने का मतलब है कि मान लो कि 9 o'clock जो है वेलोसिटी थी 5 और 10 o'clock हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड. तो 1 घंटे में कितना का चेंज आया?
1 घंटे में चेंज आया है 10 मीटर पर सेकेंड का, तो 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 आवर को कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू द एक्सेलरेशन। इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड acceleration, that is A is equal to B minus U by T। और यूनिट क्या हो जाएगी तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, और हमारा मेन टॉपिक क्या है, ओके तो अब हमारी मेन टॉपिक क्या है कि हमें रिलेशंस फाइंड आउट करनी है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए देखो, सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड को ऑप्ट कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं। चलो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या कर दिया, एक्सिस ड्रॉ कर दिया। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। नाउ लेट अस सपोज दैट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी वो है आपकी u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, फाइनल वेलोसिटी ये है आपकी v। दोनों ही वेलोसिटी किस यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड में। और इनिशियल से फाइनल होने में उसको टाइम कितना लगता है, तो टाइम टेकन कितनी है, तो टाइम टेकन किसके द्वारा, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट कितना है, तो ये है t सेकेंड। चलो ठीक है, इतना मान लिया। अब देखो हमने क्या किया, दो यही कंडीशन है हमारा कि लेट अस सपोज दैट एनी ऑब्जेक्ट इज इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी v। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और t टाइम इंटरवल के बाद यानी t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। क्लियर, यही है आपका क्लियर पिक्चर। अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशंस निकालनी है। अब जो पैरामीटर्स के बीच में हम रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इस सिचुएशन की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। आपको पता है एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, टाइम है। किसमें है, तो टाइम इन सेकेंड। और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ हम लेंगे वेलोसिटी। ये कितनी है, तो ये होगी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी यूनिट क्या है, इन मीटर per second। Okay, now what is the situation is the object is initially at the velocity u। इनिशियल कितनी वेलोसिटी है, u है। तो मान लेते हैं कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कितनी है, तो उसकी पोजीशन a है। वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, a पॉइंट पर। आफ्टर t इंटरवल ऑफ टाइम, t इंटरवल के बाद वो पॉइंट हो जाती है कितनी, तो चलो इसको पहले बाद में मिलाते हैं। t इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो हो जाती है v। वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, v हो गई। यानी कि t टाइम के बाद वो इस पॉइंट पर आ गया। यानी पहले कहाँ था, a पे, अब कहाँ आ गई ये ऑब्जेक्ट, b पॉइंट पर आ चुकी है। अब इसकी वेलोसिटी देखो कितनी हो गई, पहले थी u, अब हो गई है v। अब आपको कुछ नहीं करना है, हर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस पॉइंट को मिलाई, यानी कि ये आपका मोशन है। ये इसी ए बी लाइन के क्रॉस आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है। इनिशियली u पर थी, u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और थोड़ी देर के बाद जो है वो v पे हो गई। वो टाइम इंटरवल कितना है, तो वो है मेरा t। क्लियर। अब यहाँ से मैं एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ, और इसका कुछ ना कुछ हम नाम देते हैं। तो a हो गया, b हो गया, लेट दिस नेम इज c एंड दिस नेम इज d। यहाँ तक पिक्चर आपको क्लियर है। मैंने क्या किया है, चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, आई होप लिख लिया होगा। तो देखो मैंने क्या बताया आपको कि लेट अस सपोज दैट एनी ऑब्जेक्ट, let us suppose any object is initially moving with velocity u वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। आफ्टर t इंटरवल ऑफ टाइम इट रीचेस द पॉइंट b, और b पॉइंट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि bc जो है वो कितने के बराबर है, v के बराबर है, और ये OA जो है, OA लेंथ कितनी के बराबर है, तो इट इज इक्वल टू u। एंड OC इस कितने की इक्वल टू है, तो OC आपकी है t के बराबर। और तुम देख रहे हो कि ये दोनों जो है आपका रेक्टेंगल का सेम साइड्स है, तो ये और ये सेम हो जाएगा, यानी कि ये लेंथ भी मेरी कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी। क्लियर। ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया किसकी, तो अपने सिचुएशन की। अब हमारा जो इक्वेशन आएगा वो 3 तरह का इक्वेशन आएगा, जो इक्वेशन हम निकालने वाले हैं। तो पहला इक्वेशन जो हमारी आती है, फर्स्ट इक्वेशन,
वो है हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन क्या है, तो वी हैव इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो वेलोसिटी एंड टाइम इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम। और वन बाय वन हम इन तीनों को प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का 2 मेथड है। एक मेथड है कि आप एग्जैक्टली ग्राफ की मदद से करो, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। और दूसरा ये होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम पुराने जो पहले हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, जो रिलेशन पहले ड्राइव किया है, हम उसकी हेल्प लेते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, बता दूंगी कहाँ पे कर सकते हो, आप सॉर्ट कर सकते हो। अगर एग्जाम में आता है कि एग्जैक्टली ग्राफिकल मेथड, तो आप ग्राफिकल मेथड को ऑप्ट करो। हालांकि एनसीईआरटी ने जो किया है उसमें पहले वाले फॉर्मूले को यूज किया है सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने में और थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने में। तो मैं दोनों ही मेथड साइमल्टेनियसली डिस्कस करती चलूंगी। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या है ये, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। देखो दूसरा इक्वेशन क्या होता है, तो दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इक्वेशन। आ रही बात समझ में। और जो ये थर्ड वन है, ये जो थर्ड वन है, ये थर्ड वन आपका आता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। थर्ड वन क्या है, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या है ये, थर्ड इज व्हाट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। आ रही बात समझ में। तो अब चलो इधर वन बाय वन देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो फर्स्ट क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन देखो क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, जो कि देखो यहाँ वेलोसिटी और इधर टाइम, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेट कर रहा है। सेकंड इक्वेशन हमने क्या बताया, सेकंड बताया मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। और डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या है आपका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब लिख लो, ut plus half at square, where a is what, a is the acceleration with which object is moving from point A to B। हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं, b is equal to u plus at, सेकंड इक्वेशन है s is equal to ut plus half at square, and third one is b square minus u square is equal to 2as। यही इक्वेशन कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, b square is equal to u square plus 2as। तो दोनों ही एक ही बात है। अब हम लोग वन बाय वन इन तीनों इक्वेशंस के प्रूफ को देखेंगे। काफी सिंसियरली आप इसको देखिए, काफी इजी है, स्मूथ वे में चलता है, बस इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो इस पूरे फिगर में सबसे पहले तो आप फिगर को समझो। ये आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, और मैं इसको थोड़ा रब करती हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है बोर्ड की। ओके चलो देखो, अब ये जरा सा ग्राफ को देखो। तो ग्राफ में आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ABD दिख रही है सबको। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, ABD। क्लियर दिस थिंग। तो अब कर्व है आपके पास AB, दिख रहा है ना, AB कर्व। अब मैं इस कर्व का स्लोप निकालूंगी। क्या निकालूंगी, स्लोप। नाउ व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज y बाय x। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज y बाय x। तो कर्व AB की, कर्व स्लोप ऑफ कर्व AB इज इक्वल टू क्या होगा, तो स्लोप जो है वो हो जाएगी आपकी y बाय x। नो इस ट्रायंगल ABD की, ट्रायंगल ABD दिख रहा है ना सबको, मैं राइटिंग ओवर राइटिंग दिस डायग्राम। तो इस ट्रायंगल की जो y पोर्शन है वो कितनी है, BD है। कितनी है, BD है। और x की पोर्शन कितनी है, ये है आपकी AD। क्लियर, एनी डाउट। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उसे हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, वेलोसिटी में क्या है, y एक्सिस पे बताओ, y एक्सिस पे वेलोसिटी है, और टाइम ग्राफ क्या होगा, तो टाइम आएगा, x के जगह पे क्या आएगा, टाइम आएगा, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है ये एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट वी गेट फ्रॉम दैट द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी टाइम गिव्स अस, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। क्या देता है वो, मुझे एक्सेलरेशन देता है। तो मैं यहाँ लिखूंगी एक्सेलरेशन, A फॉर एक्सेलरेशन। अब जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, क्या देखेंगे, तो BD की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, BD की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस DC लिख सकते हैं। BD की वैल्यू क्या होगी, BC माइनस DC, BC माइनस DC।
डिवाइडेड बाय AD। अब AD देखो, AD और OC में कुछ सिमिलरिटी लग रही है, ऑफ कोर्स सिमिलरिटी, एक ही रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं तो दोनों इक्वल होंगे, यानी AD इज इक्वल टू OC। AD किसके बराबर हो गया? OC के। BC की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? BC की वैल्यू है B और DC की वैल्यू कितनी है? आप यहाँ फिर देख लो, ये और ये साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। DC और OA साइड्स क्या है? आपस में इक्वल है, तो ये बराबर इसके हो गया, यानी कि ये भी U के बराबर आ गया। तो ये हो गया B माइनस U और OC की वैल्यू कितनी हो गई? OC की वैल्यू है मेरी T। आई बात समझ में? देखो ये ग्राफ की तो हमेशा जरूरत है, लेकिन स्पेस की कमी हो रही है, तो हम लोग इस ग्राफ को यहाँ फिर से बना लेते हैं कॉर्नर में, सो दैट कि आगे हमें काम करने में दिक्कत ना हो। चलो, अदरवाइज ये परेशानी करेगा। चलो यहाँ बनाते हैं। ये देख लो, आपने ग्राफ देखा है पहले से। ये मैं बना दिया y एक्सिस, ये मैंने ले लिया x एक्सिस, और यहाँ से 2 पॉइंट लिया A एंड B। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम दिया C और इसका नाम दिया D। क्लियर दिस थिंग? और कुछ छूटा है? नहीं छूटा है। तो ये पोर्शन है किसके बराबर? B के बराबर, और ये पोर्शन है किसके बराबर? तो U के इक्वल टू। ओके, एंड दिस इज माय ओरिजिन O। एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो डाउट। ओके, वेरी गुड। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द टाइम एक्सिस, this is the time in second and this is velocity in meter per second. Can you see that? कि मैं पैरामीटर्स को जरूर लिखती हूँ। वेरिएबल्स लिखना बहुत अर्जेंट है, बिना वेरिएबल्स के ग्राफ की कोई मीनिंग ही नहीं होती है। एज वेल एज यू हैव टू मेंशन द यूनिट ऑल्सो। अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ को छोड़ते हैं तो आपका ग्राफ जो है वो मीनिंगफुल नहीं होगा। क्लियर? तो मैं फिर से आ रही हूँ इस पॉइंट पर। देखो मैंने क्या निकाला था? मैं निकाल रही थी स्लोप की। फिर से लिखूँ क्या? क्लियर लिखते हैं। चलो फिर से लिखते हैं। यहाँ थोड़ा सा टाइट सिचुएशन है, आई मीन स्पेस की कमी थी। अभी आई थिंक ये ओके होगा। चलो मैं फिर से लिख देती हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। BC की वैल्यू जो है ये आ रही है B के इक्वल। क्लियर? और OA इज इक्वल टू DC एंड इट इज इक्वल टू U। ठीक है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, मीटर पर सेकेंड है। चलो नेक्स्ट देख लो। OC जो है, OC ये है T के इक्वल। किसके इक्वल है? T के। सेकेंड में है, सब SI में चल रहा है। एंड OC इज इक्वल टू योर AD एंड इट इज इक्वल टू T। ठीक है, चलिए या ऐसे भी लिख सकते हो, AD इज इक्वल टू OC। एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग में अंदर हो जाता है कि AD जो है, AD इज इक्वल टू OC इट इज इक्वल टू T। ये किस में है भाई? तो ये है मीटर पर सेकेंड में, और ये है मेरा सेकेंड। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या? स्लोप। फर्स्ट इक्वेशन की प्रूफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्लोप ऑफ द कर्व AB, स्लोप ऑफ द कर्व AB। अब ये स्लोप क्या होगा? तो स्लोप की वैल्यू होती है y बाय x। ये पता है, फॉर्मूला पता है, सबको पता है, कोई भी नहीं भूला होगा। स्लोप की वैल्यू कितनी होती है? y बाय x। तो ये y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है BD एंड x की वैल्यू कितनी है? अब बताओ कहाँ से निकाल रही हूँ मैं? इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से। अभी तुरंत बताया था, ये ट्रायंगल में कंसीडर कर रही हूँ। किससे? ये वाला दिख रहा है सबको? रेड से मैंने ओवरराइटिंग कर दी। ठीक है, लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ABD नाम है, ABD दिख रहा है सबको? चलो ठीक है। तो y बाय x क्या हो गई? BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। ना BD कितनी है? तो BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं BD को BC माइनस DC, and AD we can write OC, and BC is what? BC is my B, DC is what? DC is my U, and OC is my T. OC is my T. Any doubt? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसके स्लोप से हमें क्या मिलता है? स्लोप से हमें मिलता है एक्सेलरेशन। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है? ग्राफ में पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? इट गिव्स अस द एक्सेलरेशन। और जब एरिया होता है तो क्या मिलता है? अगर आपकी ग्राफ जो है, if the graph is drawn, has been plotted between velocity and time, then the area under the curve will give you the displacement covered by the object, and the slope of such curve will gives you the acceleration. ये आपको पता है। तो velocity by time होता क्या है? तो ये होता है acceleration के। तो ये भी तो वही है। ये क्या लिखा है हमने? y by x. No, what is y? Y is velocity and x is what? X is time. So velocity upon time is what? It is acceleration. क्या है ये? Acceleration. और acceleration को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? a से रिप्रेजेंट करते हैं, a से। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। AT इज इक्वल टू क्या आ गया? B माइनस U।
दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। समझ गए? आ गया फर्स्ट इक्वेशन। काफी आसान है ना, कुछ भी नहीं है। चलो वेरी गुड। अब देखो सेकंड आता है, वो भी इतनी आसानी से आएगा। इसकी जरूरत है क्या? लिख लिए होंगे आप लोग। ये भी मिटा देती, चलो इरेज कर दिया। एनफ स्पेस नाउ। गुड। चलो अब ये देखते हैं इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन क्या है? तो सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है, अभी बताया ना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एरिया से, एरिया अंडर द कर्व। अब देखिए हमारा एरिया क्या है, हमारा ये कर्व है। कर्व क्या है हमारा? ए बी। ये कर्व लिया, इसके अंदर कौन सा एरिया आ रहा है? ये एरिया आ रहा है ना? चलो वेरी गुड, सब कुछ दिख रहा है। तो ये एरिया हमें निकालना है। तो अब ये कंप्लीट एरिया सेटेड जो मैंने बताया है, ये दो सेपरेट पोर्शंस का समेशन कर दे तो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ आई ऐड दिस एरिया, ओके, ये स्टार है और ये भी एक स्टार है। अगर इस दोनों स्टार को, पहला स्टार ट्रायंगल के लिए, दूसरा स्टार रेक्टेंगल के लिए, अगर इस दोनों ही ट्रायंगल और रेक्टेंगल को हम एड अप कर दें, सम कर दे, तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट एरिया अंडर द कर्व ए बी। क्या देंगे? एरिया अंडर द कर्व ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है, इसलिए हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन रहेगा तो हम हमेशा स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, चलो लिख दो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ए बी। तभी हम लोगों ने क्या निकाला था? स्लोप ऑफ द कर्व ए बी। अभी क्या निकाल रहे हैं? एरिया अंडर द कर्व ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है एस। अब एरिया को क्या लिख सकते हैं? तो एरिया को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिख सकते हो? ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या नाम है बताइए रेक्टेंगल का? ओ ए डी सी। ओ ए डी सी। वेरी गुड। चलो राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ व्हाट इज बेस? बेस इज माय 80। नाउ व्हाट इज हाइट? हाइट इज माय BD प्लस रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज योर OC। कुछ भी ले लो, OC ले लो या OA ले लो, इट विल बी OC इंटू OA। जिसको लेंथ मानना है मान लो, जिसको ब्रेथ मानना है मान लो। OC इंटू OA। कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर तो आ गया ना, क्या आ गया? OC की वैल्यू कितनी है? OC की वैल्यू जल्दी बताओ। T है। OC की वैल्यू कितनी है? T है। OA की वैल्यू कितनी है? U है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? UT मिलेगा। तो ये तो आ गया ना। अब क्या लाना बचा हुआ है? हाफ AT स्क्वायर। 50% आ चुका है, वेल डन है। 50% हम आ चुके हैं। तो हाफ AT स्क्वायर हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे कुछ लग रहा है तुम लोगों को, जरूर लग रहा होगा। AD की वैल्यू क्या होती है? T के बराबर। किसके बराबर होती है? T के इक्वल होती है। और BD को हम क्या लिख सकते हैं? BD को AT के इक्वल, क्योंकि BD क्या है? V माइनस U है। BD क्या है? V माइनस U। अभी निकाला था, क्या निकाला था? V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V माइनस U इज इक्वल टू AT। V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो ये तो हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू T इंटू, इसको लिखेंगे V माइनस U और इसको लिखेंगे UT। आगे बढ़ा देते हैं, ये UT हो गया प्लस हाफ हो गया, और ये T और V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं? AT। तो यहाँ से आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। खुशी हो रही होगी ना कि चलो सेकेंड वाला भी आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने एक फॉर्मूला यूज कर दिया, V माइनस U की जगह पे डायरेक्टली मैंने AT प्लेस कर दिया। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप डायरेक्टली प्लेस नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इस मेथड को सब लोग लिख लो। लिख लिया ना? चलो वेल डन। अब देखो मैं यहाँ फिर अपने पहले वाले पोजीशन पे वापस आती हूँ। चलो क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं। 1/2 आ गया। AD एज इट इज रहने देते हैं। अब इस BD को कन्वर्ट करना है। T तो है हमारे पास, इस BD को कन्वर्ट करके AD लाना है। तो अगर सपोज BD इज डिवाइडेड बाय AD कर दिया हमने, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय AD कर दिया, एनी डाउट? सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो AD और AD क्या हो गया? AD स्क्वायर यानी कि T स्क्वायर। नाउ BD बाय AD क्या होता है? BD बाय AD y बाय x। नाउ y बाय x क्या है? y बाय x होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि y है वेलोसिटी और x है टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन।
क्लियर दिस थिंग? अब इसको ठीक से लिख लेते हैं हम लोग, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? तो ये भी एक मेथड है, आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। तो दो इक्वेशंस हमारा निकल गया है। पहला था ut प्लस हाफ at, क्या निकाला हमने, v इज इक्वल टू u प्लस at, और सेकेंड अभी हमने क्या निकाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम देखेंगे तीसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। नाउ व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें हमेशा एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस केस में भी हम एरिया ही निकालेंगे, बट एरिया निकालने का मेथड कुछ अलग चूज करेंगे। देखो क्या चूज करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, तो थर्ड इक्वेशन है एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारा इक्वेशन। चलो, तो सबसे पहले देखो कि डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा जा सकता है, एरिया अंडर द कर्व ए बी। एरिया अंडर द कर्व ए बी। मैं फिर से सेट नहीं करूंगी, आपको दिख रहा होगा कि सेटेड पोर्शन क्या होगा। अब मुझे इस स्टार्स की जरूरत नहीं है, मैं इसमें एक ओवरऑल एरिया कंसीडर करूंगी। नो नीड ऑफ पार्टिंग, मैं सेपरेट नहीं करने वाली इसमें। तो एरिया अंडर द कर्व ए बी। अब जरा ये बताओ, ये पूरी की पूरी फिगर दिख रही है आपको? कौन सी फिगर? ये देखो, क्या है ये है ट्रेपीजियम। ये क्या है, ये है ट्रेपीजियम। क्या नाम है इस ट्रेपीजियम का, ABCO। क्या नाम है, ABCO। तो अगर हम इस ट्रेपीजियम की एरिया निकालें तब क्या होता है, चलो देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं लोग, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं S। और एरिया को क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। क्या नाम दिया, जल्दी बताओ, OABC। क्लियर? अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो चलो लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल्स, डबल पैरेलल्स माइनस दो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, नाउ सम ऑफ पैरेलल साइड, बताओ कौन कौन सा है पैरेलल साइड। तो ये है, दिख रहा है, दिस वन BC एंड OA। दिख रहा है सबको, यानी कि ये एंड ये। तो हम लोगों का क्या हो गया, वी कैन राइट BC प्लस OA। अब देखिए हाइट कितनी है, तो हाइट तो यही है। हाइट कितनी है, AD। हाइट कितनी है, A इंटू D, AD। ऑलराइट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हाफ लिखा हुआ है, BC क्या है हमारा, BC है हमारा V, एंड OA क्या है, तो U है। अब अगेन देखो AD को क्या लिखा जा सकता है, एनी आइडिया, एनी गेस? ऑफ कोर्स, व्हेन A is equal to BD by AD, so this implies AD is equal to what, BD upon A। क्यों नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए BD upon A। अरे y by x is equal to एक्सेलरेशन है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y by a। आई बात समझ में? तो y कितना है, BD है, और a क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है, तो लिख दिया हमने। अब देखो BD को क्या लिख सकते हो, BD तुम्हारा है V माइनस U। अब इस 2a को इधर लेके चलते हैं, ये हो गया मेरा 2as, और दिस वन इज हाफ इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U। अरे बात समझ में सबको, एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो, अब तो दिख रहा होगा 2 तो हट गया, ये तो 2 हमने उधर भेज दिया। अब हमारा बच गया ये V प्लस U इंटू V माइनस U। इसको क्या लिख सकते हैं, 2as इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। आ तो गया, आया? तो ये दिस इम्प्लाइज क्या लिखोगे, चाहो तो इसी को अंडरलाइन कर दो, अदरवाइज इसको कन्वर्ट करिएगा तो कहाँ लिखिए, लिख दो, कहाँ लिखो, चलो इसको इरेज करते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाए, B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as। आ गया? इसके बाद ये पॉइंट्स आई बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। क्या, तो हमने क्या किया है, क्योंकि S के साथ रिलेशन लेना, डिस्प्लेसमेंट के साथ लेना है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है, कि कर्व का एरिया होता है। तो हमने एरिया लिया था। सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हमने एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज में एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल।
जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या निकला था, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वही हमें निकालना था। तो रेक्टेंगल से तुम्हें क्लियर पिक्चर दिखेगा कि इट विल कम ut u इंटू टी, तो आसानी से हमने उसको प्रोसीड कर दिया। सेकंड केस में हमने क्या किया कि हमने वो मेथड नहीं लिया, हमने ओवरऑल ले लिया, सब पूरे को एक ही ज्योमेट्रिकल शेप दिया, और वो शेप का क्या नाम था, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो क्या होता है, सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखो ये हमने इंटू हाइट कर दिया, तो ये रिलेशन हमारा आ गया। एनी डाउट? नो डाउट। सो ये तीनों आपके पास इक्वेशंस है, जिसकी मदद से आप कोई भी इक्वेशंस को फॉलो कर सकते हो और आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्म कन्वर्शन किया है, तो ये जो कन्वर्सन है AD को हमने क्या लिखा, BD अपॉन A, क्या लिखा है, BD अपॉन A। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टेप को कम करने के लिए AD की वैल्यू, क्योंकि चूंकि AD क्या है, T है, तो AD की वैल्यू T है, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे V माइनस U बाई A लिखोगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। दूसरा तरीका, मैं किसी भी फॉर्मूला को आप नहीं करना चाहती हूँ तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए भी हमने क्या किया था, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ डिवाइड करते हैं। तो चलो, आई होप कि आपने ये मेथड लिख लिया होगा। तो आगे मैं प्रोसीड करूँगी विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग, विदाउट हेल्पिंग टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी अदर फॉर्मूला। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लिखा हाफ इंटू BC प्लस ओके है, तो यहाँ u प्लस v हमारे पास आ चुका है। तो लैकिंग क्या क्या है, लैकिंग है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर करना है, यानी कि v प्लस u आ चुका है, तो v माइनस u हमें एक टर्म चाहिए और a चाहिए, क्या चाहिए, a चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, t है, चूंकि AD क्या है, t है, तो मैं करूँगी यहाँ पे AD को AD बाय, अब देखो क्या करते हैं, AD बाय करते हैं BD, तो BD से डिवाइड किया तो BD से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये टर्म आ गया आपका u प्लस v, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 बाय BD बाई AD, इस AD को नीचे लेकर आ गए तो ये क्या हो गया, BD बाई AD, और ये BD है ना, इस BD के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, BD के बदले में लिख सकते हैं v माइनस u। अब देखो आप समझ में आ रहा होगा, तुम लोगों को सब क्लियर होगा। चलो कहाँ लिखे, ये आई होप की ग्राफ होगी आपके पास। तो यहाँ से चलो प्रोसीड करते हैं, क्या आ गया, s इज इक्वल टू क्या हो गई, हाफ इंटू, अब देखो ये टर्म क्या हो गया, ये हो गया b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। अब देखो यहाँ पे BD बाई AD है, BD बाई AD क्या हो गया, y बाई x यानी कि a, तो दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 1 बाई 2a इंटू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आई बात? सो दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इज दैट ओके? तो ये था तुम्हारा, थॉट कर सकते हो और आराम से आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे एक कन्वर्सन किया है, AD को BD से डिवाइड किया, BD से मल्टीप्लाई किया, एंड BD बाई AD इज माई एक्सप्लेनेशन। सो इन दिस वे आई होप इट इज क्लियर टू यू कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है आपके वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इज योर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस AT। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड थर्ड इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आई होप दिस derivation is clear to you. Thank you students, thank you for listening me. If you like my videos then please like and subscribe my channel. Thank you all.